साउंड सिस्टम लगाएंगे। हाँ यस। क्यों? ठीक है। हाँ ठीक है, चल रहा है। चल रहा है, चेक किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। Hare Krishna. So, which verse we are on? What happened last time? The disciples they challenged. They challenged the statement of Gopinath Acharya. What? How much? 70? 80. तो supposed to discuss the purport ना? इसका 84 का क्या? Oh right. अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसादलेशानुगृहीतैव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्येभ्यो विचरन्ति। My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate in order to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. कोई आया है क्या? The above verse is from Srimad Bhagavatam. The Brahma Samhita states, Vedeshu durlabham adurlabham atma bhakto. Although the Supreme Personality of Godhead Krishna is the ultimate goal of the knowledge,
Vedesha Sarver Aham Eva Vedyo. One who is not a pure devotee and who is not engaged in the service of the Lord cannot understand him. The Lord Brahma therefore confirmed this. Vedeshu Durlabham. It is very difficult to understand the Supreme Lord simply through one's studies. Adurlabham Atmabhaktu. However, it is very easy for the devotee to capture the Lord. The Lord is known as Ajita, unconquerable. No one can conquer the Supreme Personality of Godhead, but the Lord consents to be conquered by his devotee. That is the nature, as stated in the Padma Purana. अतः श्री कृष्ण नामादि न पवित्रायम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति. Being pleased by the devotional activities of the Lord, being pleased by the devotional activities, the Lord reveals himself to his devotees. That is the way to understand him. The verse from Srimad Bhagavatam quoted by Gopinath Acharya was originally spoken by Lord Brahma when he was defeated by Lord Krishna. Lord Brahma had stolen all the calves and the cowherd boys in order to test Krishna's power. Lord Brahma admitted that his own extraordinary powers within the universe were not in the least comparable to the unlimited power of Lord Krishna. If Lord Brahma can make a mistake in understanding Krishna, what to speak of an ordinary person who either misunderstand Krishna or falsely present his so-called incarnation of Krishna for their own sense gratification. So the point which was remaining from discussion was that we should consider ourselves fortunate that we have got the proper understanding about the Lord, and also remain in an humble state of position to continue to practice this path. Prabhupada appropriately writes at the end of the purport, if Brahma can make mistake, if Brahma can make mistake, Brahmaji's body, Brahmaji doesn't have the body also. Brahmaji has a body of only intelligence, nothing else. Our body is made up of earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego, and so many things. But Brahmaji's body is only made by the intelligence. Our body has everything on and no intelligence. But his body doesn't have anything. He has only intelligence, nothing else. And he is making the mistake. So why the devotee is able to understand? Devotee is able to understand by somebody's mercy. This is only the whole process, starting, beginning, middle, end, perfection, everything is the process of mercy. As far as the devotional service is concerned, this is the process of mercy. We never came to take Bhagavad Gita. When you are interested into Bhagavad Gita, somebody mercifully gave so many cookies and made us read Bhagavad Gita. So Prasad was a mercy. That devotee who carried without taking Zomato charges was mercy. So it was all mercy. We can understand it. But that was very initial mercy. Should not every day ask cookies for chanting Hare Krishna now. I was chanting one round that time. I used to get one cookies. I'm chanting 16 now. So naturally, I should get at least one dabba. No, now it's a time to hold on to that mercy. Mercy is given now. So like that. So the whole process is of mercy. Prabhupada was asked when Prabhupada was presenting this message of Krishna consciousness everywhere, and devotees were Prabhupada was presenting also very emphatically, very nicely. So and the devotees were understanding. But then sometimes great personalities used to come, great personality in the sense in the modern world. They are having big degrees, big research work. They have done scientists and all.
So Prabhupada used to explain them and they were not able to understand. And sometimes devotees asked Prabhupada, we are able to understand, we are college dropouts. हमने तो हमारा पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किया ठीक से. We are able to understand what you are saying. Not just able to understand, but we are sometimes convincing others also what by hearing from you. They are able to understand. But these people are not able to understand. They are intelligent. They are not able to understand. Why? Prabhupada said they are bereft of mercy, nothing else. So if somebody is able to understand, he should not consider very great. No, nobody is great. That is also by somebody's mercy, by the blessing of Lord, by the blessing of some devotee, by the blessing of the spiritual master, and universally by the blessing of Srila Prabhupada, people are able to understand. But they should never consider that they have understood Krishna. Or for the what happens is sometimes in the people in the ISKCON, some one another problem is there. They stay very nicely, practice very nicely for some time. Once they understand a little bit, they consider now they have understood everything. And sometimes they start another organization only. And then still they become very famous because nobody has anything to speak. सारे लोग बड़बड़ करते रहते हैं. राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि भागवत कथा में जाओ, बाजू में ऑर्केस्ट्रा बैठे रहता है और महाराज 5 मिनट बोलते हैं, वो 25 मिनट गाते हैं, भजन गाते हैं. बोले क्या नौटंकी लगा के रखा है. राधा गोविंद महाराज तो सीधा ऐसे ही बोलते थे, अरे कथा है, बीच बीच में क्या ऑर्केस्ट्रा लगा है, क्या डीजे है क्या इधर, कुछ महाराज को सूझ नहीं रहा है तो चालू हो जाता है वो. अरे इसको थोड़ी बोलते हैं कथा करो, 2-4 घंटा बोलो तब बताएंगे तुमको कुछ पता है कि नहीं पता है. हमारा ड्रॉप आउट जो होता है ना ISKCON का, वो भी ऐसे बड़े बड़े पंडितों के ऊपर चला जाता है, बोलता है लोगों लोग वाह क्या बोल रहा है. मगर जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर थे, उनके पास कंपाउंडर रहते थे, 1-2 साल कंपाउंडर बनते थे, डिग्री नहीं कुछ नहीं, कॉलेज का बच्चा पैसा कमाना है बोल के कंपाउंडर बोला है. साल भर देख रहे हैं, बुखार है तो क्या देना है, खांसी है तो क्या देना है, दर्द हो रहा है तो क्या देना है, पीठ दर्द हो रहा है तो क्या देना है. साल भर देखता देखता है, दुकान खोल देता है डॉक्टर. उसको पकड़ने के लिए आने कौन वाला है गांव में, इतना टाइम कहाँ है गवर्नमेंट के पास. मस्त पैसा कमा, सारे के सारे जितने भी कंपाउंडर थे, 2 पैसे का भी डिग्री नहीं था उनके पास, मगर सारे कंपाउंडर थे. क्यों? डॉक्टर के नीचे काम किया ना उन्होंने. तो इस तरह से हमारा when you learn the tattva from a very bona fide sampradaya, it's very difficult for the people. There are so many organizations that tell their followers कहीं पे भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ISKCON में मत जाना. राइट, तुम जाओगे तो वापस आओगे नहीं, वापस हमारे आश्रम में मठ में हम तो धज्जियां उड़ा देंगे इधर आएंगे तो. उसकी बाहर नहीं कुछ बोलेंगे, मगर यहाँ तो पता चलेगा ना उनको कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ तो कुछ काम का नहीं बोल. Right? So this is what? This is mercy. हमको भी पता था कि ये सब, we were also not knowing. We heard from some devotee. That is also mercy. That is mercifully gave us this knowledge without making any adulteration. Right? Prabhupada also told that my only contribution is that I did not subtract it. I just kept it as it is. So if somebody is speaking as it is, that also is mercy. Not just cookies and all these things are mercy. Feasts and all, they are mercy for sure. But the real mercy is that he has spoken everything as it is without making any modification. So when we are able to understand the Tattva, Krishna Tattva, it's not anybody's contribution from his own side. है कि नहीं. हम प्रयत्न करके एग्जाम पास हो सकते हैं, प्रयत्न करके पैसा कमा सकते हैं, प्रयत्न करके घर बना सकते हैं, मगर प्रयत्न करके आप इस शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं. पढ़ के भी कुछ आने वाला है. Somebody has to mercifully explain it in a fashion by which we can understand. Right? Sometimes people explain so many things, but they don't even understand. The person sitting in the front in front of me is able to understand or not. Right? So the devotee has very mercifully explained us. That is also his mercy. So that's why Prabhupada quotes that verse, Atha Shri Krishna Namadhi Na Bhavid Grayam Indriyai.
Krishna's name, Krishna's prasad. What is that? Prasadam prayers beginning. Hmm? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वासो नैव जायत. We will not be able to develop faith on these transcendental items, Lord's prasadam, Lord's holy name, Lord's deities. Will not be able to develop. Our punya, our credit is very low. So it is a mercy. Na bhaved grayam indriya. This indriya cannot understand the transcendental nature of Lord's pastime. But sevan mukhe jivado. Why we are given mercy and why will we continue to give mercy is if we humbly render wonderful service to Krishna. Last time also we ended with that only. That somehow the other Krishna should consider kitna अच्छा सेवा कर. Once Krishna should be happy with the disposition of our service towards him, then we will be able to attract the mercy of the Lord. And we will be able to attract the mercy of the devotee also by rendering some very wonderful service. And then we will be able to more and more understand this particular shastras. So this is the thing which is needed to be understood from this verse. So we'll go ahead. So there is a kind of a debate going on between Gopinath Acharya and the disciples of Sarvabhauma Bhattacharya. So Gopinath Acharya is the path. There is Prabhupada writes, Prabhupada explains also and writes also. There are two paths: monkey path and kitten path. Yes. So he describes that. So all these Mayavadis and all these people, apart from bhaktas, ये सारे आपको जितने भी धंधा लगा के बैठे हैं ना स्पिरिचुअलिटी का बोलते हैं लोग, they don't bother about getting mercy from anybody. You read, you understand, you interpret the way you will. अरे this is monkey path. आपको क्या पता शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? Simple आदमी, I was giving the example in our Atmanivedan yoga. There was a man, वो सोने का दुकान वाला था, ज्वेलर. बहुत भीड़ रहती थी उधर. इतना कोई अंगूठी खरीदने आए, कोई चेन खरीदने आए, कोई शादी का आई है, शादी को खरीदने आते तो आप टूथपेस्ट पाउडर खरीदने जाते तो एक आधा आदमी जाके जिसको चाहिए उसको लेके आता है. अगर आप सोना बोना खरीदने आते तो 2-4 लोग आते हैं देखने के लिए, है कि नहीं? भीड़ भाड़ रहती थी उसको. अभी वो तो उसके पास एक आदमी था, हाँ, और क्या बोलता था पता है? नाना चाय लाओ. मतलब जो बैठे आके लोगों को चाय पिलाने की, वो नाना जाता था 1 घंटा आता ही नहीं था. वो तो कहाँ जाता था पता नहीं, जाने का तो ढोंग कर देता था, वापस आके सीधा अंदर दुकान में काम चालू हो जाता था उसका. और ये बता रहा आना चाय लाओ, फिर वो जाता था चाय लेके आता था. अभी लोगों को लगता था अरे बेटा वो जा रहे जिसको चाय पिलाना नहीं है मगर बुलाए चाय उसके लिए, मतलब जाओ दे शेठ जी पुढच्या वेळेस घेऊ, अगली बार पियेंगे. बोले नहीं आ रहे, रुको 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 बाहर. आधा घंटा वहीं तक करके चला जाता था, बोला बिना बताए चला जाता था बात. अभी देखो इसमें है ना बड़ा झोल है, उस मतलब शब्द ही है वो अगर उसको कोडवर्ड था लोगों के बता के रखा था. नाना बोला तो जाने का मगर चाय नहीं लाने का, चुपचाप बाहर से लेके आए के अपना काम चालू कर देंगे, इनको पिलाना ही नहीं चाहे अपने को. तो बोला ना नाना बोलने का, और अन्ना बोलेगा, अन्ना बोले तो लाने का. तो आगे वाले को लगता था कि हमारे लिए चाय मंगाया है इन्होंने, मगर बोलने के टाइम पे उसने बता दिया है कि चाय मत लाओ इधर. नाना बोला तो नहीं लाने का, अन्ना बोला तो लाने का. वो किंतु किसको पता है? वो सिर्फ नौकर को पता है, आगे बैठे वाले को पता है कि मेरे लिए चाय मंगाया है बस. तो इसको पता नहीं कि अरे नाना का मतलब एक होता है, अन्ना का मतलब एक होता है. तुमको एक फटीचर शेठ जी और उसके नौकर के अंदर का कॉन्वर्सेशन समझ में नहीं आता, शास्त्र का खाक पता है चलेगा. यहाँ तो इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो लोगों को लगता है हम तो खुद के हिसाब से शास्त्र सीखेंगे. अरे नहीं सीख सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे, पढ़ाई करके शास्त्र ऐसे नहीं पकड़ में आएंगे.
कृपा होगा किसी का, भगवान का, डिवोटी का, तो ही पकड़ में आएंगे। मगर इन लोगों को लगता है कि नहीं, उसमें क्या है, पढ़ाएंगे। तो ये तो कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी है, कोई आइंस्टाइन के नियम है। लास्ट टाइम वी वर थिंकिंग, आप आइंस्टाइन को 2-4 गाली दो, न्यूटन को 4-5 गाली दे दो और उनके थ्योरम पढ़ो तो लिखो, आपको 1000 मार्क मिल जाएंगे, 100 में से 100 मार्क मिल जाएंगे, 90%, 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी को भी उल्टा सीधा बोल दिया ना, कुछ समझ में नहीं आया। इधर कुछ भी बोलने का पहला ही अपराध लिखा हुआ है वहां पे। शास्त्र बोलने वाले की उल्टा सीधा कुछ बोला तो अपराध हो जाएगा वो। अब न्यूटन को 2-4 गाली दो, कुछ अपराध नहीं होगा उसका, जो होता है आपको सब समझ में आएगा। वो ज्ञान का और लिखने वाले का कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे शास्त्र को गाली देके, भक्तों को उल्टा सीधा बोल के, सेवा में उल्टा सीधा करके फिर शास्त्र पढ़ नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये अलग सिस्टम, ये नॉर्मल ज्ञान नहीं है कि जो पढ़ के समझ में आए। सो यहाँ पे कृपा सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है। That's what Gopinath Acharya is telling. You are trying to understand Chaitanya Mahaprabhu and all other conclusion of the Shastras by your own reading. Where is the question of mercy? It's not there at all. That is not taught. That comes now. यद्यपि जगद्गुरु तुम्हें शास्त्र ज्ञानवाना, पृथ्वी ते नाही पंडित तुम्हार समान, ईश्वरेर कृपालेश नाही कत्तुमाते, अतएव ईश्वर तत्व न पार्थ जानीते। गोपीनाथ आचार्य then addressed सार्वभौम भट्टाचार्य। कुछ मिस हो गया क्या? ठीक है। Gopinath Acharya then addressed Sarvabhauma Bhattacharya, you are a great scholar and a teacher of many disciples. Indeed, there is no other scholar like you on earth. देखो ये रेपुटेशन है सार्वभौम भट्टाचार्य का। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े लोगों को कन्वर्ट किया है। That was a strategy made by Chaitanya Mahaprabhu. Right? Catch Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, all scholars, rich people, all stalwarts, icons. Mahaprabhu used to hit the icons. उनको चेंज कर दिया पूरी दुनिया, है कि नहीं? अमिताभ बच्चन कल हरे कृष्णा करके घूम रहा है रास्ते पे, क्या होगा? है कि नहीं? मजा आएगा एकदम। So like that, to catch the icons. That was Mahaprabhu's style. So he was the greatest scholar on the earth, Sarvabhauma Bhattacharya. And Chaitanya Mahaprabhu is in the process of converting him now. Nonetheless, because you are bereft of even a pinch of Lord's mercy, you cannot understand him, even though he is present in your home. So, of course, Chaitanya Mahaprabhu has already made the plan that he will give the mercy to Sarvabhauma Bhattacharya. That's why he fainted also. Of course, that he has not fainted for Sarvabhauma Bhattacharya. He fainted out of his ecstasy, but he gave the service to Sarvabhauma Bhattacharya. Lord gives an opportunity to the people in the world to render service. Because of that, their price credit, and because of that, their relationship with the Lord is established, and they become qualified to receive the mercy of the Lord. So, we getting mercy of the Lord is also plan of the Lord only. We getting mercy of the Lord is also the mercy of the Lord. इतना मतलब महाप्रभु के वहां पे कॉन्वर्सेशन कहाँ पे, we don't have qualification, we don't have the ability to get the qualification also. देखो हमारा हालत इतना खराब हो गया, मतलब है जीव जो इस दुनिया में गिरा हुआ है। जैसे वो बच्चा है, छोटा बच्चा होता है ना, माँ जन्म दिया वाला, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? उसका कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, और उसके पास प्रयत्न करने का सिस्टम भी नहीं जिसकी वजह से वो क्वालिफाई हो सकता। उसका जीवन बरसी पे चल रहा है। खाना है तो बरसी है, खाना छोड़ दिया नीचे से तो वो भी निकालना भी वो बरसी है, सब कुछ बरसी है उसी के लिए। सो इट्स लाइक दैट।
So it's not that we are unqualified. No, we are unqualified to that extent that we can't even become qualified also. So all the arrangement is made by the Lord that the living entity can become qualified at one point of time by rendering some service to it. So here he described, you have read so much, you are so much great scholar, but the problem is that we are bereft of the mercy of the Lord. But now Chaitanya Mahaprabhu is going to play such a wonderful interaction with Sarvam Bhattacharya that he will derive the great mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then he will become a great devotee also. Just time is separating. तुम्हार नाही का दोष शास्त्र यही कबे शास्त्र यही कहे पंडिताद्य ईश्वर तत्व जान गुना है. It is not your fault. It is the verdict of the scriptures. You cannot understand the Supreme Personality of Godhead simply by scholarship. This is the biggest mistake which is done in this material world. People consider that they will read the books and they'll get knowledge. That's not possible. There is one which is described. Our Shastras are personalities. They are not books. Srimad Bhagavatam is a personality. Srimad Bhagavad Gita is a personality, and personality deserve the right to give the secrets to others. It is book will not keep that secret, but the personalities will keep the secret, right? आप आपका secret बताओगे किसी को? नहीं बताओगे. Last time we were describing, because I am a personality. So as a personality, we will always reserve our right to disclose the details. In the similar fashion, all these shastras reserve the right whom to give the knowledge to. And those who are blessed by the Lord, those who are those who have got the mercy of the Lord, all devotees, then the shastras speak to them. You know, Kadam Kanand Swami Maharaj, he was describing, he had made that Prabhupada Samadhi in Mayapur. देखा ना आपने मायापुर में Prabhupada Samadhi is so beautiful, so gigantic, बड़ा सा. तो बोलते थे 2:30 बजे उठता था मैं, 2:30 बजे 3 बजे जो भी है, माला लेते थे हाथ में, स्नान करने के बाद 2 घंटा माला करते थे. अभी हो गया 6 बज गया. शाम सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता था. ऐसा उन्होंने 2 साल किया. कुछ नहीं, साधना नहीं, कुछ नहीं. सवेरे उठने का, स्नान करके पहले अपना 16 माला करने का, अच्छे से एकदम सोते बोते नहीं, अच्छे मेहनत करके, with a great endeavor, and then whole day deal with workers, construction. आपने आप में से कितने लोगों ने वर्कर लोगों के साथ काम किया है पता नहीं है कि नहीं. आपको तो सारे डिवोटी बाजू बाजू में दिखते हैं, वो भी तकलीफ लगते हैं आपको. वर्कर के साथ काम करो तो अच्छे लगेंगे, डिवोटीज बहुत अच्छे लगेंगे, है कि नहीं. महेश को पूछो आप, थोड़ा रियलाइज नॉलेज मिल जाएगा. पैसा देने के बाद भी काम नहीं करते, गाली देने के बाद भी काम नहीं करते, पता नहीं कब काम करते हैं वो. मन में आया तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते. कभी भी छोड़ के जा सकते हैं आप. So like that, they are very dangerous species. But he worked. तो 2-3 साल, हरे कृष्णा सनी प्रभु, 2-3 साल उन्होंने ऐसा लाइफस्टाइल जिया. इतना घंटा 12-13-14 घंटा वर्कर के लोगों के साथ काम, और इतना सुंदर वो बाहर आया प्रभुपाद समाधि. और महाराज ने बोला, उसके बाद 3 साल के बाद मैंने पुस्तक खोला भगवत गीता. बोले ऐसा लग रहा था कि पुस्तक मेरे को बोल रही है, मेरे को पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा. द बुक वॉज टॉकिंग विद मी. ये लिखा है हमने, ये लिखा है, यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे अर्जुन वो कहना चाहते, यहाँ पे बताना चाहते. सो सेवा किया, इतना कृपा, इतना सब भक्तों ने, प्रभुपाद के शिष्यों ने, सारे भक्तों ने प्रभुपाद समाधि देखा, कितना सुंदर है. लेकिन कुछ तो लोग बोलते हैं कि तो ताजमहल भी इसके आगे फीका है, तो इतना सुंदर बना है. सो लाइक दैट. सो व्हेन समबडी सर्व्स वेरी नाइसली with great efforts,
Then Krishna gives mercy, the devotees give mercy to him, and then the Shastras are revealed to him. And this is the process. तो बोले आपका कोई दोष नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका कोई दोष नहीं है, आप तो लाइन पे चल रहे हो, जो कृपा नहीं मिलता उसको समझ में नहीं आता है, इसमें क्या बड़ा सीक्रेट है। This is very important verse प्रभुपाद लिखते हैं, this is very important. Even big scholars cannot understand Krishna, yet they dare to comment on Bhagavad Gita. Reading Bhagavad Gita means understanding Krishna. Yet we actually see many scholars making blunders in trying to understand Krishna. And this is true. कुछ भी मतलब निकालते हैं, उटपटा मतलब आप हंसोगे, इस डार्विन की थ्योरी के ऊपर हंसते हैं ना लोग, उस तरह से आज से। माय ग्रैंड मदर शी वॉज फ्रॉम द मायावादी बैकग्राउंड, तो मेरे को बोलते थे तुम बहुत अच्छा भक्ति करो। मैं बोला अरे इतना एनकरेजमेंट इन लोगों से क्यों आ रहा है, बहुत अच्छा भक्ति करो, बोले इस जीवन में बहुत अच्छा भक्ति करके मतलब जीवन को हो जाएगा ना, तो दूसरे अगले जीवन में हमारे संप्रदाय में तुमको जन्म मिलेगा। मैं बोला हे भगवान। हाँ, बहुनाम, और श्लोक कौन सा कोट करते थे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मैं बोला ये तो हम बोलते हैं, तुम अच्छा मायावाद फॉलो करो, 2-4 हजार जन्मों के बाद हमारे इस्कॉन में जन्म मिलेगा। तो प्रभुपाद को वृंदावन का वो पुजारी बोलता है ना, बोले कि आप अच्छा भक्ति इस्कॉन में अच्छा प्रचार करो, बोले मर जाओगे ना अगले जन्म में हमारे संप्रदाय में चाँद गोस्वामी के उसमें जन्म मिलेगा तुमको। वो तो घंटी बजा के आरती कर रहा था भगवान का, प्रचार का तो नाम कुछ नहीं, और ऊपर से कॉन्सेप्ट उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट, हम ही ये दीक्षा दे सकते हैं, हम ही शास्त्र पढ़ सकते हैं, हम ही बता सकते हैं। जात गोसाई वाला था, वो पूजा कर रहा था वृंदावन के मंदिर में, और डिवोटीज को ऐसे बोलते, प्रभुपाद को आके बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते जाके उसको बोलो ठीक से आरती ठीक से करना, अगले जीवन में इस्कॉन में जन्म मिलेगा तेरे को, है कि नहीं। तो लाइक दैट कुछ भी मतलब निकालते, जो मन में आए वो मतलब निकालते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अभी शंकराचार्य भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम के बाद कॉमा दे रहे, मूढ़ मते बोल रहे। ये मूढ़ मते को घुसाते अंदर गोविंदम के साथ, उसके बाद कॉमा देते। वो बोलते हैं अरे मूर्ख लोग हो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, मतलब हम गोविंद का भजन करने वाले मूर्ख, ऐसा उनका कहना है। वो शंकराचार्य अपने खुद के शिष्यों को बोल रहे हैं अरे पढ़ाई मत करो मेरे भाई, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करने। एंड देन नाउ दे कैन नॉट एक्सप्लेन सेकेंड लाइन, in the second line Shankaracharya is telling that your knowledge will not come to your help. now किसको एड्रेस कर रहे हैं अभी बताओ, अपने शिष्य को एड्रेस कर। दूसरे लाइन का प्रपोर्ट नहीं देंगे, पहले लाइन को गोविंदम के साथ जोड़ देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, ये मूर्खो गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन, मतलब वो गोविंद का भजन करने वाले मूर्ख लोग। मगर शंकराचार्य वहां पे बोल रहे हैं तुम गोविंद का भजन करो, मूर्ख लोगों, तुम्हारी पढ़ाई कुछ काम पे नहीं आएगी, और आप लाइन पूरा करोगे तो समझ में आएगा। मगर उनको आपने पहले से ही बना के रखा हुआ है, हमको ऐसे ही इंटरप्रिटेशन करना है, इसलिए गुरु चाहिए। गुरु उल्टा सीधा करते तो कान खींचता है, बोले ऐसा नहीं बोलना, ये नहीं बोला है, वो बोला है, बट इनको गुरु नहीं चाहिए, खुद का इंटरप्रिटेशन चाहिए। So that's why Prabhupada is telling all these scholars give all kinds of interpretation. You have heard that. That was another debate where Krishna is written. You are removed Krishna. Prabhupada तो पूरी दुनिया में जाके, क्या नाम है वो राष्ट्रपति थे, हाँ रामकृष्ण, राधा कृष्ण was राष्ट्रपति, right? He was president. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रभुपाद ने एक जगह पे भी छोड़ा नहीं उनको, एक जगह पे भी, जहां पे वो मिलने गए थे चेन्नई में, उनको मिलते टाइम अच्छे से मिले, मगर अच्छे बताया प्रभुपाद ने कि ये गलती है। कृष्णा इज टेलिंग ऑफर ओबेसेंसेस टू मी। अगर आप प्लेट लेके बैठे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे को एक गुलाब जामुन दो, और बाजू वाला बोल रहा है इनको नहीं, इनके अंदर जो आत्मा है ना उसको गुलाब जामुन दो, अब वो कान के नीचे लगाओ एक, तुमको मैं बैठा हूं, मेरी प्लेट खाली दिख रही है, वाटी खाली दिख रहा है, तुम आत्मा को क्या खिलाने गए हो, मेरा क्या श्राद्ध कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आत्मा को खिलाने के लिए बैठा हूं मैं आगे,
मैं मांग रहा हूं, उसके बाद प्रभुपाद बोलते इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत क्या है तुमको? कोई बैठा है और बोल रहा है मेरे को गुलाब जामुन दो, आपको इंटरप्रिटेशन करने की क्या जरूरत? नहीं, इसका मतलब है कि इसके अंदर की आत्मा अतृप्त है, उसको गुलाब जामुन खिलाओ। अरे तुमको बोला किसने तात्पर्य देने के लिए? कौन सा मोरा आचार्य और टीका देने के लिए? राइट? वो मांग रहे गुलाब जामुन, चुपचाप दे दो उसको। इसलिए वो बोलते हैं प्रभुपाद जन, भगवान बोल रहे हैं मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मन में मेरा ध्यान करो, जप करो, मेरा भक्त बनो। अभी आपको इंटरप्रिटेशन देने की क्या जरूरत है? सो दिस इज द प्रॉब्लम. Mercy means we follow what is being told, and disregarding that mercy means I will give my interpretation. I don't bother what the superiors, great saintly personalities have spoken. That is kicking away that mercy. I don't bother. प्रभुपाद को बोला अरे रामानुजाचार्य ने जितना पुस्तक में लिखा वही आपकी भगवत गीता में। प्रभुपाद बोले वही तो मैं चाहता हूँ। This is actually acquiring the mercy. You are respecting the personalities who have been great devotees of the Lord. Giving one interpretation is actually rejecting the mercy. We don't bother what they have spoken. We will give our own interpretation. In that circumstances, these are the circumstances where people cannot understand Lord. And this is very clear. इसलिए हमें हमारे परंपरा में सरस्वती ठाकुर ने जानबूझ के वो परंपरा का सॉन्ग लिखा है। बोले हमारे परंपरा का एक भी आदमी खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, अपने गुरु से सीखा है और ऐसे ही बोला है, उसी को परंपरा बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर लिखते हैं, इवन बिग बिग स्कॉलर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा येट दे डेयर टू कमेंट ऑन दी भगवद गीता। रीडिंग भगवद गीता मीन्स अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, येट वी एक्चुअली सी मेनी स्कॉलर्स मेकिंग ब्लंडर्स in trying to understand Krishna. So they are making blunders in understanding Krishna only because they are not interested in acquiring any mercy. That is another part of it. Gopinath Acharya's statement is confirmed in many places in the Vedic literature. In the Katha Upanishad, it is stated, Nayam Atma Pravachanena Labhya Na Medhaya Na Bahuna Shutena यम एवायसतस विवृण्यते तेन लभ्यस तस्यैत आत्मा विवृण्यते तनुमां स्वाम। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले दो लाइन बहुत फेमस है, दूसरे दो लाइन हमने कभी सुने नहीं है। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन करके, मेधया, मेधया मतलब हाँ मेधा, मेधा वेरी इंटेलिजेंट, न बहुना श्रुते न, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, ये सभी से भगवान समझ में नहीं आने वाले। इट इज ऑल्सो स्टडीड इन कठोर उपनिषद। मैंने श्लोका नहीं पढ़ाई, मेरे को पढ़ने नहीं आएगा, हमको देवनागरी चाहिए। नैषा तार्कीन मत। The fact is that the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, cannot be attained simply by explanation, logic, erudite scholarship. One cannot understand him simply by one's brain substance, Medaya. Even by studying all the Vedic literature, one cannot understand the Supreme Lord. However, if one is slightly favored by the mercy of the Lord, if the Lord is pleased, one can understand him. देखो हमारा यही काम है, यहाँ रह के, मंदिर में रह के, योगा में रह के, भक्ति करके, हमारा एक ही काम है कि somehow the other we please some of the devotee, we please some of the we please the Lord, and that's why we will be able to understand. We will not be able to understand by our brain substance and all like that. Yes, but if we get the mercy, then all the secrets which is described in the Shastras will be revealed automatically. That's what is the process. That's what is the process. If the Bhagavatam is pleased, if the Lord is pleased, if the devotee is pleased, all these secrets will come out and will be revealed into the heart. Right? ये हमको सब पता है. We have just, we have, what is that? हाँ, अतः श्री कृष्ण नामादि नवविध घाय इंद्रिय सेवन मुखे दिवा तो
Swayameva Spuratyada. You'll be able to understand very nicely by getting the mercy of them. Only the devotees, they only can understand what is the Supreme Personality of God. The Lord reveals Himself to the sincere devotees when He is pleased with His service. The clear statement is the Lord reveals Himself to the sincere devotee when He is pleased with His service. स्वयं एव अरे वाओ अच्छा हो गया आ गया तुरंत स्वयं एव स्फुरति यदा one should not try to understand the Lord simply from the statement of the Vedas, nor should one uselessly attempt to decry these statements through reasoning and logic. So we have to please the Lord by our service. Then we can understand the scriptures. सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधानी तुम्हाते ईश्वर कृपा इथे की प्रमाणे. Sarvabhauma Bhattacharya is arguing. Sarvabhauma Bhattacharya replied, "My dear Gopinath Acharya, please speak with great care. What is the proof that you have received mercy of the Lord?" बोले, ठीक है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमको मर्सी नहीं मिला है भगवान का. बोले तुमको मर्सी मिला है उसका प्रूफ क्या है? तुम्हारे शरीर से लाइट आ रहा है क्या? तुमको मर्सी जो स्टैंप मारा है क्या भगवान ने? उसको मर्सी दे दिया मैंने, ठक बोनाफाइड, आगे चलो. से रबर स्टैंप लगाते कपाड़ के ऊपर, ये आचार्य हमारे फाउंडर आचार्य ठूम, राइट, दिस इज हिज होलीनेस, ऐसा ठप्पा मारते हैं भगवान. बोलते आपको मर्सी मिला है, आपको कैसे हवाले हवाले ठीक है, हमको मर्सी तो मिला नहीं, हमको तो इज्जत निकल गया, आपने हम लोग बता दिया सब कुछ, मगर आपको कृपा मिला है उसका क्या प्रूफ है कि नहीं? ये देखो तार्किक कैसे रहते हैं, हर चीज का तर्क करते हैं वो लोग. आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है पाते प्रमाण. Gopinath Acharya replied, knowledge of the Samam Bonam, the absolute truth, is evidence of the mercy of the Supreme Lord. Knowledge of the Samam Bonam, the absolute truth, is the evidence. मस्त purport होगा ये. Sarvabhauma Bhattacharya informed his brother-in-law Gopinath Acharya, the Supreme Personality of Godhead may not have shown mercy to me, but what is the proof of his having shown mercy to you? Kindly let us know about this. In reply to this, Gopinath Acharya said that the Samam Bonam, the absolute truth, and his different potencies are identical. Therefore, one can understand the substance of the Supreme Truth by the manifestation of his different potencies. The Samam Bonam includes all potencies in one unit. The absolute truth combined with different characteristics is the original substance. Vastu prayasya shaktir vividhaiva shruyate. Thus, the Vedas state that the absolute truth has different potencies. When one understands the characteristics of the potencies of the absolute truth, one is aware of the absolute truth. On the material platform as well, one can understand the substance by the manifestation of its symptoms. For example, when there is a heat, it is to be understood that there is a fire. The heat of the fire is perceived directly. The fire may not be visible, but one can search out the fire by feeling the heat. Similarly, if one perceives the characteristics of the absolute truth, we can know that he has understood the substance of the absolute truth by the mercy of the Lord. In the Bhagavad Gita, it is said, Naham Prakasha Sarvasya, the Supreme Personality of God, it reserves the right of not being exposed to everyone. Sevan Mukhe hi jivado swayameva hi spuratyata. The Lord reveals himself to a devotee
when he is completely satisfied by the devotee's service. Thus, one cannot understand the Supreme Lord without his mercy. The absolute truth cannot be understood by the speculation, and this is the conclusion of the Bhagavad Gita. So, what is the proof? Proof is that if somebody is able to understand and explain what is exactly as it is given in the Shastra, that person should be considered has acquired the mercy of the Lord. He should not be proud of that mercy, but the people in general, and that's why we say Krishna Kripa Murti. They have acquired mercy of the Lord. Right. The way so beautifully Prabhupada has explained the Shastras. If somebody has understood like that and somebody is able to explain like that, that means he has acquired mercy of God. It's so simple. Our proof is not like that. You speak all kinds of things, but don't speak the truth. बिग बिग ओरेटर्स हमारे भक्तों के यहाँ हमारे ग्रेट डिवोटीज से भी बड़े बड़े बोलने वाले लोग होंगे, उनका चमत्कार दिखाते होंगे बोल के, है कि नहीं? मगर क्या बोलते हैं, कुछ तो टाइम पास बोलेंगे जिसका कुछ लॉजिक नहीं, कुछ मतलब नहीं, किसी का बेनिफिट नहीं है। तो ये तो बोलने की कला को नहीं बताया है। जो शास्त्र में दिया है भगवान के बारे में एज इट इज ऐसा बोल रहा है, कोई समझ रहा है और बोल रहा है, और अपना खुद का नया इंटरप्रिटेशन उसके अंदर डालने का उसका कोई भाव नहीं है। ये दिस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस इज द मर्सी ऑफ द Lord. I don't have my own style of interpreting it in this way or that way, right? That is mercy of the Lord, है कि नहीं? हम प्रार्थना करना चाहिए और हमारा डिजायर बनाना चाहिए. We have to develop that desire that I should become a transparent via medium. Transparent का मतलब ही होता है, प्रभुपाद जो लिखते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है. कांच में अभी हजारों प्रकार आते हैं आपको कांच, और कुछ कुछ कांच तो बड़े ओपेक रहते हैं, वो दिखता ही नहीं दूसरी तरफ का. वो कुछ कांच आते हैं एक साइड से दिखता है दूसरी साइड से नहीं दिखता है. आजकल जो ट्रेन में उसमें वगैरह बिठाते हैं ना वो लोग, तो अंदर वाले को बाहर वाला दिखता है, बाहर वाले को अंदर वाला कुछ नहीं दिखता, राइट? ये भी कांच है, मगर ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम कभी कभी इतना अच्छा क्लीन करते हैं कांच के, आपको समझ में नहीं आता तो डोर है वो थाम करके जाके उसके ऊपर टकराते हैं. इसको ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम बोलते हैं. बेचारा अपना कुछ लगा नहीं रहा है बीच में, जो है बस वही है, लाइक दैट. ये इसको ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम. So Prabhupada, the way our Guru Parampara has explained, Srila Prabhupada has explained, our Acharyas are explaining, that is actually the way they explain Srila Prabhupada's books or the Parampara Tattvajnana. That is this, that is mercy. That's why they are Kripa Patra. If somebody is properly presenting the Shastras as it is and not having any desire of interpreting on its own, and he consider that is mercy, somebody has explained me. मेरे को किसी कहाँ से पता नहीं चला है, मेरे को किसी ने मेहनत करके एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उस ऐसे वाले परिस्थिति में वो भक्तों को समझना चाहिए कि उसको कृपा मिल चुकी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा जितना भी उसका एडवांसमेंट है उतना कृपा मिल चुकी है उसको. मगर कृपा बोलने वाले को या एक्सप्लेन करने वाले को आप भी लोग डिवाइस देते हैं आपको, लोगों को, आपको आके बच्चे बोलेंगे हाँ सर जी क्या मस्त पढ़ाते हैं आप, तो हमको समझ में आना चाहिए भैया. क्या बोलते हैं प्रभुपाद, बोलते हैं बोरोड प्लूम्स, मांग के लाए हैं, हमारा खुद का तो है नहीं, राइट? सो इफ यू सी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन डिवाइस, यू गिव डिवाइस, पीपल अप्रिशिएट, भाई ये तो हमने कभी, इतना सिंपल है, राइट? द शास्त्रास आर वेरी सिंपल, बट देन इफ यू डोंट इंटरप्रेट देन दे आर सिंपल. इफ यू इंटरप्रेट दे आर नॉट सिंपल, राइट? जयदत्त स्वामी महाराज बोलते हैं, अरे प्रचारक तुम हट जाओ बाजू से, शास्त्र बहुत सिंपल है, तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उसको घुमा घुमा के बता के, स्ट्रेट बताओ एकदम, राइट? कृष्णा इज ब्यूटिफुल, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव. देन व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग? ऑल द पीपल आर नॉट कमिंग टू कृष्णा, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव.
ये बीच में जो कांच है ना, वो कुछ तो उल्टा सीधा दिखाता है। है कि नहीं? कुछ लोग तो डर जाते हैं, बाबा इस्कॉन वाले आगे। Like, no, if Krishna is attractive, you have to present Krishna all attractive. If I am covering Krishna's attractive nature by my interpretation, then nobody will be attracted to it. Right? Krishna will be seen by the people through the person who is telling about Krishna. Right? आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। प्रभुपाद ने ऑस्ट्रेलिया में गुरुकुल खोला था। हाँ, और गुरुकुल के जो टीचर थे वहां बहुत सारे गड़बड़े होंगे, उसमें एक भी गड़बड़ था। सारे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे एकदम, हंसने का नहीं, जब भी देखे तब एकदम गुस्से वाला मुंह करके। और प्रभुपाद को उन्होंने लिखा था, प्रभुपाद कितना चपाती बच्चों को देना चाहिए? प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है 2-3 दे दो, बच्चे हैं। मगर प्रभुपाद बोले बाद में उसको सफाइस करते हैं, बोलते हैं कि जितना उनको जरूरी है, किसी को ज्यादा चाहिए कम चाहिए उतना उसको दे दो। दैट इज अ क्लियर स्टेटमेंट। इन्होंने रूल बनाया, प्रभुपाद ने बोला 2-3 चपाती देना है, बस देना ही नहीं। तो एक तो 2 मिलेगी, नहीं तो 3 मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ये परेशान बच्चे। एंड देन प्रभुपाद कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, देखो अभी। और सारे भक्त लोग, गुरुकुल के बच्चे, ये वो सब आते हैं प्रभुपाद को वेलकम करने के लिए। हाँ, प्रभुपाद को वेलकम करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब भक्त लोग बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका क्या, उसका क्या, और हर चीज का जवाब प्रभुपाद जोक मार रहे हैं और सब हंस रहे। प्रेस प्रेस रिपोर्ट और वाला हंस रहा है, भक्त लोग हंस रहे, बच्चे हंस रहे, प्रभुपाद हंस रहे। जब से प्लेन से उतरे तब तक अब आना, रिसीव करना, उसके बाद ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक सिर्फ हंसना ही चल रहा था उधर। तो गुरुकुल के बच्चे को लगा, तो एक बच्चा लिखता है, आज मेरे को पता चला इस्कॉन में हंस भी सकते हैं बोल के। है कि नहीं? इसका मतलब इतना टाइट मार के रखा था उन लोगों की, फालतू में जब टेंशन बढ़ाने का है। भक्ति सीरियसली करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि वो सीरियस पे, जो सीरियस दिन भर 365 दिन सीरियस, 24 घंटा सीरियस। सुसुखम कर तुम, हमें खुशी से भक्ति करना है। भगवान ने बोला है सुख से करो भाई। भजताम प्रीति पूर्वकम, इधर भजताम भीति पूर्वकम चलता है। इसका भीति, उसका भीति, उसी का भीति, काउंसलर का भीति, भगवान का भीति। इसको इसको भक्ति नहीं बोलते हैं। सबके भीति भीति करके भक्ति कर रहे। भगवान पता, प्रीति पूर्वक खुशी से करो, कि तो बांध के नहीं रखा है, कोई जेल में नहीं डाला है, अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा दे गया। ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे बेचारा मार मार के इधर रखा है कि नहीं? ऐसे नहीं भक्ति करने, तो खुशी से करो, थोड़ा नाचो गाओ खुशी से। So this is the process which is described. Krishna is all attractive. The people who are explaining Krishna is become so hazy. This is all attractiveness is covered. If somebody is transparent via medium, he will present Krishna very beautifully. And it's a duty of the preacher to present Krishna all attractive, so that the people get attracted to us. And Prabhupada ने किया वो, and our organization also doing, but we have to understand that we have to also become a transparent file. So anyway, this purport is little important. We'll study this next time. Anyway, we have crossed the limit of time. We stop here. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Bolo? Yeah. Your question, and then we'll end with your question. Madhurena samapayet. Actually, seven we divide 3 times. Means we just provide people access. Super is quoting again and again same. Similarly, he will quote same statement multiple times in Bhagavad Gita and Bhagavatam and CC. So sometimes we get off track. Why Prabhupada is saying same thing 108 times. So then how to continue with same thing? Because very देखो क्या है, पता है क्या,
There are many answers, but one of the important answers is that the knowledge and the mental state of the people is very cluttered and it's not focused on one thing. So if you have to make focus on one thing, then repetition is important so that you don't make a mistake. एक बार बताओ कि स्वयं के जीवादु स्वयं पुरत नद्या, आप पता नहीं अभी भूल जाओगे, रखोगे, परपोट का दूसरा पार्ट पकड़ोगे, है कि नहीं? चतन चरण प्रभु says whatever you read, whatever people read, they catch 10% of that what they read. But it's not that all people catch the same 10%. No, everybody's 10% is different. What he will catch भगवान जाने उसको क्या पकड़ेगा. अभी इसमें क्या किया है बताया क्या? When you repeat the same thing, कौन सा भी 10% निकालो आप, उसमें एक मिल जाएगा आप. आप किधर भी खींचो उसको, इधर खींचो, उधर खींचो, उधर खींचो, तो क्या होता है पता है क्या? अभी अब वो त्रिनादपि सुनिश्चित त्रिनादपि सुनो, बार 1000 बार सुनो, एक आध बार दिल करता है यार थोड़ा हम्बल बन जाता हूँ शायद. 1000 बार सुनने के बाद बनता है, एक आध बार सुनोगे है ठीक है बोलता, हवा में निकल गया होगा आवाज, you know. So like that, the repetition of something will make us serious. इतना कृष्ण का भक्ति किसी के बाप ने आज तक नहीं किया था जितना इस्कॉन वाले करते, है ना? ठीक है, क्यों? हर परपोट में वो मिलता है इसलिए. इतना क्रेजी तो कोई बना नहीं था आज तक जिंदगी में. बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, धोती कुर्ता पहन के गांव पर घूमते रहते हैं. इसका हिम्मत है आज तक ऐसा करने का? लोग भी वर्शिप करते हैं सब, ये जो ट्रेडिशनल अपने आप को घरंदाज बोलते हैं, अमरवाड़ी गुजराती ये लोग करते हैं, कृष्णा कृष्णा ही करते हैं. हमारे जितना नहीं करते हैं, हमारे जितना फेथ नहीं है उनको, हमारे जितना बोल्डनेस भी नहीं है. घर में कृष्णा करेंगे, बाहर जीन पैंट पहन के घूमेंगे. आप करोगे? नहीं करोगे. फिर क्यों आया है? वो रिपीटिशन का ही है. इतना भरा है कृष्णा की, दूसरा घुसता ही नहीं है अंदर. दूसरे किसी को कुछ घुसाना है तो उसको इतना रिपीट करना पड़ेगा पहले. इधर बैठ के रोज क्लास सुनो, सवेरे शाम दोपहर को ये करो वो करो, इतना डाला तब जाके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है. 2 मिनट बताओ तो कुछ नहीं होने वाला. रोज रोज बार बार वही वही. कौन सोला माला करता है? आई वेंट टू वन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे टक्कर की ऑर्गेनाइजेशन, पैसे के अंदर, मंदिरों के अंदर, सब में. उसका वॉलंटियर था. बच्चे आते हैं घर से, उनको कंपलसरी है 6 महीना 2 महीना 5 महीना मंदिर में जाके सेवा करना. तो उसको मैंने पूछा कितना माला करते हो? हमसे आधा भी नहीं है मंत्र उनका, छोटा सा मंत्र है 3 अक्षर का, इतू सा गड़गड़ गड़गड़. हमारी 1 माला होगी तो उनकी 25 माला हो जाएगी. उसको बोला कितना माला करते हो? बोला हमारे ऊपर छोड़ दिया है, जितना करना है उतना कर. बोला ठीक है छोड़ दिया है, तुम कितना करते हो वो तो बताओ. 5-6 माला करता हूँ. 5-6 माला के लिए कितना मिनट लगता है? 5 मिनट लगता है. 2 घंटा जप करने के बाद हमारी ये हालत है. 5 मिनट जप करें वो क्या मिलेगा? तो इतना ठूस ठूस के भरना, ये सब जब रिपीट किया तब जाके कुछ आपको देखने को मिल रहा है. अब वो सोने का अंदर का जो एनोमलीज गड़बड़ी है ना, वो निकालने का प्रोसेस देखो. रिसेंटली मेरे को मदर को कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने थे तो गया था. बोला चलो, जनरल नॉलेज के लिए गया, मेरे को तो सोना नहीं चाहिए था, मगर देखा उसको, अरे भैया क्या बात करूं मैं. उसको सोना रखा उसने ऐसा, उसके पास एक फायर प्रूफ प्लेट होती है, उसको ऊपर पूरा ऐसा फायर लगाया. 15-20 मिनट आधा घंटा तपाया उसको पूरा. वहां में ठोका, धाड़ धाड़ मार मार के फिर से तपाया उसको. तब उसको निकाला. बाद में बोलता है अभी ये 22 कैरेट सोना है आपका, ले लो. क्योंकि बहुत सारे रिंग ये वो मिक्स होता है, क्या पता नहीं क्या निकाला उसने, सब कुछ दे दिया उसने गोला दिखाया दिया देने में. So like that, when we intensely focus on that particular thing, नहीं यही है. इतना बोलने के बाद भी ऋत्विक जैसे उल्टे पुल्टे लोग बैठे भी आओ फिर से अपना दिमाग लगाने के लिए, इतना फोकस करने के बाद आप फोकस तो छोड़ दोगे तो फिर तो कोई लेना देना ही नहीं. फिर तो हर आदमी अपने मन से कुछ भी करते रहे. प्रभुपाद ने किसी को
मिस इंटरप्रेट करने के लिए चांस ही नहीं दिया। इसलिए वो भागवतम के बारे में, भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में बोलते हैं, मायावादी लोग आजू बाजू में आते ही नहीं, क्या इंटरप्रिटेशन दोगे? दे ही नहीं सकते कुछ मायावादी इंटरप्रिटेशन आप। इतना भरा है कृष्णा उसके अंदर। ध्रुव महाराज के पास टाइम को लेके मायावाद बड़ा प्रूव करके दिखाओ। अरे भगवान उधर खड़े अपना शंख उसको लगा रहे, अभी कहां से मायावाद निकालोगे उसमें से? Personality is coming, he is meditating on personality, he is meditating on personality, is in Paramatma. Afterward that same Paramatma manifest in front of him. He is not able to speak, he touches this conch shell and then he starts speaking. Now prove mayavad from this that Lord is nirakar. कहां से लाओगे? इसलिए भाग के आते ही नहीं है वो लोग उधर। प्रहलाद महाराज को भगवान बचा रहे। प्रहलाद महाराज को पूछ रहे कहाँ है तुम्हारा भगवान? बस सब तरफ है, कहाँ नहीं है बताओ। अभी वो बोलता है, वो मायावादी लोगों का रोल कर रहे हैं, ये पिलर में है क्या? बोले हाँ है। थोड़ा तो क्या निकला? प्रकाश नहीं निकला उसमें से। प्रकाश प्रकाश आनंद नहीं निकला उसमें से। उसमें से पर्सनैलिटी निकला। देख ले भाई, वो ना है। अभी देखो मायावादी इंटरप्रिटेशन, ये भागो, ये सारे लोग भाग जाते। बोले नहीं नहीं, इसमें क्या बताएं अभी हम लोगों को? ना वर्ड सपोर्ट करती है, ना शब्दार्थ सपोर्ट करता है, ना ट्रांसलेशन सपोर्ट करता है, हम क्या बताएं इसको अभी? इसलिए लोग टच ही नहीं करते। तो इसलिए इतना भर दिया है कृष्णा भागवतम में, भक्ति रसामृत सिंधु में। उसी तरह प्रभुपाद ने अपने परमुट में इतना कृष्ण भरा है कि किसी को घुसाने के लिए चांस ही नहीं दिया है। ये लाओ मसोबा लाओ, खंडोबा लाओ, ये लाओ, अरे कहाँ से लाओ? कुछ तो बोलो, हमने इतना कृष्ण के बारे में बोला, दो चार लाइन तो बोलो। वो भी नहीं है उनके पास। तो चुपचाप ठीक है, आपका जो चल रहा है वही एक्सेप्ट करते। दिस इज द टेक्निक। ये एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी ये टेक्निक देते, कोलगेट 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 कोलगेट। वो जाता है ना दुकान पे, बोलता है कोलगेट दे दो। अब ये कोई बड़ा रिसर्च वर्क करके नहीं आया है वो। ही हैज नॉट एनालाइज्ड इसका कंटेंट, उसका कंटेंट, ये अच्छा है वो अच्छा है। उसने कुछ नहीं देखा है। उसने एक ही किया है, 1000 बार कोलगेट सुना है, इसलिए इसके मुंह से चुपचाप आ रहा है कोलगेट। This is the psychological system. If you repeat the same thing, then you are forced to think and then you are forced to follow. But if you don't repeat, होगा नहीं पे कुछ। इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देखो यार। हमारे बच्चे को कोई क्रिश्चियन नहीं बना सकता है, मुस्लिम नहीं बना सकता है, मायावादी नहीं बना सकता है। मायावादी लोगों को पिटाई करता है अपना, उसका जब ठीक से नहीं करेगा मगर उसका धुलाई करके निकलेगा वो। अपने जब का वाट लगा हुआ है, उसको पूछो कितना माला वो देखता है, कितना पता नहीं कितना हुआ है। काउंट करते टाइम नींद आया, भूल गया। एक माला 15 मिनट में, एक माला 2 मिनट में, एक माला 7 मिनट में, एक माला 25 मिनट में। वो भी समझ में नहीं आता कितना माला हुआ है। उसके भी मायावादी को खड़ा करो उसके आगे, जद्दिया उड़ा देगा वो। बोला मेरा तत्वज्ञान मेरे को पता नहीं, मगर तुम्हारा तत्वज्ञान गलत है, ये मेरा पक्का पता है। This much is known. Why? Because it is written in every single purport. If you don't repeat, it will not happen. ऐसा मेरे को लगता है। मतलब whatever I have analyzed is like that. श्रील प्रभुपाद की जय। इम्प्लीमेंट करते हैं।